morning. Number system. There are many type of numbers which is divided in mainly two groups. One is decimal numbers, other is without decimal number. Now in decimal numbers we will read terminating decimal, non-terminating decimal and non-repeating decimal. The another type without decimal, in this numbers we will read integers, natural numbers, whole numbers, prime numbers, composite number, etc. Now at first we read the numbers who comes in without decimal. हम लोग विदाउट डेसिमल में आने वाले नंबर के बारे में पहले जानें। सबसे पहला इंटीजर्स, हेयर सी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इट गोज टू इन्फिनिटी. सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 एंड टुगेदर विथ 0. कोई भी इंटीजर जो होता है वह जितने जो काउंटिंग नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा टुगेदर विथ 0, ये सबों को एक साथ नाम इंटीजर्स कहते हैं. 0 भी एक इंटीजर है. 1 2 3 -1 -2 एक्सेट्रा सब का एक ग्रुप है और इसी ग्रुप का नाम है इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स, द नंबर विच इज यूज्ड इन काउंटिंग. जो नंबर गिनती के रूप में यूज किया जाता है काउंट के लिए, चाहे वह बुक का नंबर हो, कॉपी की नंबर हो या अनदर कोई मेजरमेंट का नंबर हो, तो सभी नंबर जो है वह 1 से शुरू होता है काउंटिंग में. 1 2 3 4 5. इसीलिए यह जो नेचुरल नंबर है इसका नाम हम लोग काउंटिंग नंबर देते हैं. लेकिन काउंटिंग 0 से शुरू नहीं होता है. हम लोग कहीं भी देखते हैं तो काउंटिंग नंबर अगर किसी को कहा जाता है तो यही बोला जाता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. So natural number can be named as counting number. The another name of natural number is counting. Next, whole number. Whole number, it means if counting number is started with 0, then the natural number which is started with 0 is known as whole numbers. Example of whole numbers 0 1 2 3 4 5 6 etc. Whole number cannot be negative. Next, prime number or numbers, the numbers which have exactly two factors. These two factors are 1 and itself. प्राइम नंबर हम लोग उस नंबर को कहते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर है, केवल 2 ही नंबर से कटता है, और वह जो नंबर है वह श्योर है कि एक होगा 1 और दूसरा होगा वह इटसेल्फ. द नंबर विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज नॉन एज प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11. इफ वी डिवाइड 2 by 1 we get quotient 2. If 2 is divided by 2 we get quotient 1. But if we divide 2 with 3 4 5 etc. we get the quotient in decimal form. So decimal form never goes in prime numbers. Now in prime number
या इन प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, all prime numbers are odd exceptionally 2. It is even. All prime numbers. Here we see 2, 3, 5, 7, 11 etc. etc. Only a number 2 which is even, except 2 all are odds. Next, composite number, the number which have at least 3 factors. The numbers which have exactly 3 factors, and these factors may be one itself and other. Like 4. 4 has 3 factors, 1, 2 and 4. 6, 4 factors, 1, 2, 3 and 6. So these are said to be composite numbers. Now another numbers are also co-prime etc. etc. But we read the another type of numbers which is decimal numbers. Decimal number is derived or divided in 3 groups. यह जो डेसिमल नंबर है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं. पहला, फर्स्ट, टर्मिनेटिंग. इट मीन्स the quotient is terminating. It means if we divide the number by another number, then quotient will be 0. In this case we can say that the number is in decimal form and terminate. वह नंबर जिसको हम लोग दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर पूरा पूरा कट जाए, इसका अर्थ है डेसिमल में जाने के बाद कट जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचे, तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग. लेट अस सपोज दैट 3/4. इफ वी डिवाइड 3/4 वी गेट 0.75 as quotient and no remainder. It means this is said to be terminating decimal. It is necessary to the terminating number or decimal, the quotient is in decimal form but terminating their ends. टर्मिनेटिंग के लिए जरूरी है कि जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में ही आएगा, और डेसिमल में आने के बाद कुछ ही प्लेस, चाहे वह 10 प्लेस हो, 5 प्लेस हो, जितने भी प्लेस हो, जाने के बाद वह पूरा पूरा कट जाए, तब उसका नाम हम लोग देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. एग्जाम्पल 0.75. Now which is the value of 3/4? 3/4 is not in a decimal form, but 0.75 is terminating decimal. Next, non-terminating decimal. इसका अर्थ हुआ कि अगर हम लोग वैसे नंबर 2 नंबर को लेते हैं जिसको डिवाइड करते हैं तो क्वेशिएंट कभी भी इंड नहीं होता है, इंडलेस है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और वह रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ रहा है. इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6... दिस डॉटिंग शोज दैट यह नंबर का वैल्यू फिक्स नहीं है, इनफाइनाइटली प्लेस तक वह बढ़ते जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा. नेक्स्ट,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन जैसे रिपीटिंग डेसिमल, वैसा डेसिमल जो या जिसका जो इंड है वह फिक्स नहीं है कि वह 10 प्लेस या 12 प्लेस जाने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग उसको नॉन टर्मिनेटिंग होना है। इसका अर्थ है 10, 20, 50 जितना प्लेस तक आप जाओ वह कभी कटेगा नहीं, और साथ में वह रिपीट भी नहीं होगा, वह रिपीट भी नहीं होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 8, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ अगर देखें तो वह डॉटिंग सोच कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहा है, और डिजिट सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे को बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड दिस इज ऑल्सो सेड टू बी इरेशनल नंबर। ऐसे ही को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो कंडीशन है, द नंबर्स विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर हैं उनको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग जो है यह दो तरह का होता है, एक केवल नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरे का नाम है रिपीटिंग। यह भी दो तरह का, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक और इसका टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यह कटेगा नहीं पूरा पूरा लेकिन नंबर रिपीट होगा। लेट अस सपोज दैट 4/3, इफ वी डिवाइड 4/3 वी गेट क्वेशिएंट if we divide 4/3 we get quotient like 1.33333। after decimal place we see that the numbers or the digits, not numbers, the digit or digits are repeated in case of non terminating but repeating number. Now, after seeing this, we can say that the group, the combination of terminating and non-terminating but repeating number is said to be rational number. अब इसी से जो दोनों नंबर आए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट इसे रिपीटिंग, ये दोनों को बोथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर। इन दोनों से मिलाकर हम लोग रैशनल नंबर में इसको ला सकते हैं। और द थर्ड ग्रुप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें अगर जाएंगे तो इससे हमको ग्रुप बनेगा इरेशनल नंबर। इतना दूर तक हम लोग, या इतना जो था हम लोग जनरल चीज पढ़ा। अब हम लोग का मेन जो शुरू करना है वह है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और नंबर्स एक्सेट्रा। रैशनल नंबर क्लियर है? रैशनल नंबर जो होंगे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, किन किन को हम लोग बदल सकते हैं, तो ये श्योर है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बदला जा सकता है।
terminating decimal is not a rational number, but it can be converted into rational number. Either the numbers are terminating decimal or non-terminating but repeating decimal. These are not rational number, but it can be converted into rational number. So at first we know about rational number. What is rational number? Numbers are in the form of P by Q. नंबर्स अगर P by Q के फॉर्म में है, where P and Q are two integers. P and Q are two integers, but Q is not equal to 0. P and Q are two integers. It means the value of P and Q will be either 0, 1, 2, 3, 4, 5 or -1, -2, -3, -4, etc. etc. It means P and Q both will be positive, negative and whole number, except Q is not equal to 0. P will be positive integers, negative integers even if 0 or together with 0, but Q will be always either positive integers or negative integers. Q will not be 0. P 0 हो सकता है, P 1, 2, 3 इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, Q भी पॉजिटिव हो सकता है, Q भी निगेटिव भी हो सकता है, P और Q निगेटिव हो सकता है, P और Q पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है. Where Q is not equal to 0 is said to be rational number. For example, 4 by 3 minus 7 by 9 etc. etc. 4 by 3, P belongs to 4, Q belongs to 3. So 4 by 3 is in the form of P by Q. 4 by 3 P by Q के रूप में है, लेकिन कंडीशन है Q केवल 0 नहीं होना है. तो here Q is 3 not equal to 0. So 4 by 3 is a rational number. Next, minus 7 by 9. P is negative integers and Q belongs to 9. It means positive integers. तो after seeing this जो है integers, we can say that P will be positive, negative and 0. Q will be positive, negative but not 0. इस केस को यह फॉलो कर रहा है 4 by 3 minus 7 by 9, क्योंकि Q केवल 0 नहीं होना है, यहाँ Q 0 नहीं है इसलिए है. नेक्स्ट 0. कैन यू से दैट 0 is a rational number? Yes. Why? Because 0 can be written as 0 by 1. Here Q is 1 and P is 0. Here see, P will be 0 also. So here P is 0, Q is not 0. So Q is also a rational number. Now types of rational number. रेशनल नंबर को हम लोग कुछ टाइप में बांटते हैं. तो रेशनल नंबर में फर्स्ट है पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर
A positive rational number, it means P and Q. P and Q both will be either plus plus or minus minus. Either plus plus or minus minus. Let us suppose that 4 by 5, now both are positive. If we write minus 4 by minus 3, this sign will be cancelled. After cancelling this sign, we get only 4 by 3, which is in the form of positive. So, P and Q. In case of positive rational number, it is necessary that P and Q both will be either positive or negative. इसमें दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव इट मीन्स आइदर, कोई एक, आइदर पी और क्यू, आइदर पी और क्यू इज नेगेटिव, आइदर पी और क्यू इज नेगेटिव। लेट अस सपोज दैट minus 4 by 3, here Q, here P is negative, 3 by minus 8, here Q is negative. So it is necessary that only one, either P or Q is negative, positive, negative, and 0 is 0 by 1, it is neither positive nor negative, 0 is simply 0. After seeing this, now how can we represent rational number on the number system? Sorry, it's a number line. After seeing the rational number either positive or negative, how can we represent these numbers on a number line? Representation of rational number on a number line. How can we represent rational number on the number line? At first we draw a line. As you know that a line, it means whose end points are not given, end points are not fixed, is considered as a line. So at first we take a line and put some numbers or some required numbers having equal distance. So this is an example of number line. Take a rational number 3 by 4 and now we try to put this number on the number line. So at first we see what is the value of this fraction. Its value is less than 1. Its value is 0.75, which is less than 1. It means it is proper. So at first we know about the form of some numbers. It means fraction. First, proper fraction. Proper fraction. Proper fraction, it means the fraction whose value is less than 1. So if we represent proper fraction on the number line,
it is necessary that its value will lies between 0 to 1 in case of positive and 0 to -1 in case of negative. अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 0 to 1 लाइज करेगा और निगेटिव है तो 0 to -1. यहाँ 3/4 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. Why? Because if we divide we get quotient less than 1. So it is proper fraction and it is positive proper fraction. So its value will lie between 0 to 1. Now the whole space 0 to 1 is divided into 4 parts, which is the denominator, which is the value of q. So this whole part will be divided into 4 equal parts. Let us suppose that 1, 2, 3 and this 4. Now see the numerator. Now see the value of p, which is 3. So now count 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. This place, this point on the number line represent 3/4. If we represent 1/4, let us suppose that on the number line, so at first we decide that which type of fraction it is. यहाँ देखिए कि कैसा फ्रैक्शन है 1/4. यह इसका वैल्यू भी लेस देन 1 है, यह भी इसी प्रॉपर में आएगा. इसका अर्थ है इसका जो वैल्यू है 0 to 1 के बीच ही लाइज करेगा. तो नीचे जितना लिखा रहेगा डिनोमिनेटर में उतना इक्वल पार्ट्स में इसको बांटना है और तब देखना है कि न्यूमरेटर क्या है. न्यूमरेटर में जो डिजिट आया है, जो नंबर आया है, उसी को हम लोग काउंट कर दें और उसी को पॉइंट डालकर वहीं पर लिख दें जो क्वेश्चन दिया हुआ है. तो 1/4 इज न प्रॉपर फ्रैक्शन. इट मीन्स इट्स वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0 to 1 इन पॉजिटिव केस एंड हियर डिनोमिनेटर इज 4. सो होल न प्लेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. And now see the number digits who comes like numerator, who gives the value of p. So 1, here is 1. So we mark the point 1 on the number line and represent this. Second fraction is improper, whose value is 1 or more than, whose value is 1 or more than 1. It means 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है. Let us suppose that 12/5. इसको डिवाइड करें 2.4. 2.4 है तो 1 से तो ज़्यादा है. 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 तो सिंपल नंबर है, वो तो कभी हम लोग दिखा सकते हैं. तो 2.4 है, माने 1 से ज़्यादा हो गया, या ये तो 2 से भी ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यह इम्प्रॉपर में है. तो अगर इम्प्रॉपर में हो तो सबसे पहले हम लोग इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे. एट फर्स्ट वी चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आफ्टर चेंजिंग दिस वी गेट 2/5. ऐसा हो गया. अब इस केस में इसको देखना है, जो होल नंबर, वी सी द होल नंबर विच इज 2. अगर इसको देखते हैं कि होल नंबर तो 2 है, तब क्या करना होगा कि जो आया है उससे तो बड़ा नंबर है मेरा, चूंकि इसका वैल्यू 2.4 है, 2 से बड़ा है, इसका अर्थ है 2 और उसके नेक्स्ट 3 के बीच में लाइज करेगा.
तो 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। तो सबसे पहले 12/5 को ऐसे कर दिया, 2/5 और 2 इंटीजर्स 2/5 और 2 होल 2/5 एक्सेट्रा। अब यहीं से डिसाइड करना है, देखना है, इसी को मार्क करना है, यही इंपॉर्टेंट है कि इसके जस्ट बाद और कौन सा नंबर आता है। तो इसके जस्ट बाद आता है 3, तो 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू लाइज करेगा। अगर कोई बच्चा इसी तरह से यहाँ पर न किसी तरह बना कर दिखा दिया तो समझ जाएं कि सही है या गलत। ये तो हो गया 1 और 2 के बीच में, और आना चाहिए 2 और 3 के बीच में। तो इसके लिए अगर चलेंगे 0 1 2 इसके बीच में आएगा, क्योंकि 2/5 है, माने 2 से कुछ ज़्यादा है। तो पहले 2 को हम देख लिया कि 2 और 3 के बीच में, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। बाकी क्या बचा 2/5। 2/5 तो इम्प्रॉपर ना होकर प्रॉपर जैसा है। अब प्रॉपर में जैसे करते थे तो 2 और 3 के बीच में नीचे जितना है उतना पार्ट में इसको बांटना है। तो कितना पार्ट है वो 5 है, तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से काउंटिंग नहीं करें, काउंटिंग करेंगे उसके बाद से, होल के बाद से 1 2 3 4 और ई आएगा उसमें 5। अब देखना है, बोले थे प्रॉपर के लिए कि न्यूमरेटर को देखें, तो क्या आ गया 2। तो यहाँ से काउंट करें 1 2, यही जो पार्ट होगा वही होगा आइदर 2.4 2/5 और 12/5। लेकिन आंसर वह लिखें जो क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में ई नहीं है, ई नहीं है, क्वेश्चन में यह दिया हुआ था, यहीं पर लिखा जाएगा 12/5।